I hope Yes. I hope I am audible to all. Yes, sir, you are audible. Thank you, ma'am. Thank you for acknowledging. Is the screen is visible to all? Yes, sir, yes, it is visible. Okay. So I will try to keep this session interactive. So anyone can unmute and interrupt in between. So if I got your responses, it will be helpful to make it a live session. So can you identify what kind of the images or the pictures are on the screen? Is there anyone who will help me to identify these images on the screen? Image or social media. जी बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही. We are having participants from the different disciplines. We'll try to communicate or interact in this particular session in hybrid mode or combination of more than one languages. तो ये जो images है social media की है and everyone of us I can say कि everyone of us is using this social media, either at least one. Many more we are using, I think Insta, Facebook, WhatsApp are popular, Twitter, YouTube also we are using. But कभी आपने कभी नोटिस किया है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है तो उस प्लेटफॉर्म से we are getting some advertisement and all those advertisement are related to our own interest. For example, if I am accessing YouTube from my system or my mobile device, and if someone else is accessing that particular YouTube, the same application from his mobile or his system, but we both are getting different kinds of the advertisements on the screen, and those advertisements are related to our interest. Have you recognized this particular difference? कभी आपने notice किया है इसे? Yes. Yes, yes. Along with the same, if I am using LinkedIn, Facebook, वहाँ पे भी कभी-कभी क्या होता है कि Facebook और LinkedIn social media recommend the list of persons who are having the same interest as I or we are having. हमारे सेम इंटरेस्ट के साथ, सपोज इफ आई एम बिलोंगिंग टू द एकेडमिक फील्ड, अगर हम एकेडमिशियन हैं तो मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड जितने एकेडमिशियंस है वो हमें सजेस्ट करता है ना. इट मीन्स these platform use some kind of a technology to identify my interest. Am I right? So generally these all major social media use X kind of X powered technology, X powered algorithm, which are designed for the recommendation, or we can say for the advertisement purpose. Okay, now we'll go to the next page again. On the next page we can see again some kind of the logos that I can say, and all these logos belonging to, आप शायद इसमें से कई यूज करते हैं. अभी तो दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है, दशहरा शॉपिंग शॉपिंग. यस राइट. बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया होता है अपना कि अभी सेल्स काफी चल रहे हैं, तो वी ऑल आर ईगर टू ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग. राइट 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 मैम. तो सेल्स भी होते हैं. यहाँ पे भी देखिएगा all these social media recommends the personalized product recommendations are there in the shopping media. Like if I search for sari on a Google, the same kind of the what I can say the product I can see in my Amazon, or the same I can see in my Flipkart. जो हमने गूगल पे सर्च किया है, जो मैंने मोबाइल पे सर्च किया है, वही सारी चीज़ें अगर मैंने अमेजोन पे पहले कुछ सर्च किया है, या फिर इवन दैट अमेजोन रेकमेंड्स कि आजकल जोमेटो भी रेकमेंड करता है कि लास्ट वीक आपने ये खाना ऑर्डर किया था, तो आप अगर इस बार वही खाना अगर आप ऑर्डर करते हैं तो यू विल गेट सच काइंड ऑफ द discount. It means
the price offer is also going to be given by the system to the users, and the system is able to optimize the prices according to the demand of that particular product. जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे उसकी प्राइस बढ़ जाती है, जैसे डिमांड कम होती है वैसे ही उसकी प्राइस कम हो जाती है। जैसे हम लोग रेड बस पे अगर हम बुकिंग करते हैं तो आप देखिएगा एक ही बस की अगर डिमांड बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम रेकमेंड्स टू द मर्चेंट फॉर इंक्रीजिंग द प्राइस। तो ये रिकमेंडेशन मर्चेंट को भी जाता है और यूजर्स को कब आता है कि अगर वो देख के बंद करता है तो फिर से पॉपअप आता है कि वे आर सर्चिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रैवलिंग, if you book the same ticket within 6 hours you will get 10% of a discount. So such kind of discounts offer that we can get from the system, and it is again because of that X factor which is present in all those apps. Okay, now I think the first logo is well known to all. It belongs to Google, and the others are rarely used by the users, but widely again use Yahoo and Bing that we are using widely. But compared to Google, the others are not. Others are rarely used. So these are the logo belongs to the search engine. आजकल ऐसे हुआ है कुछ भी अगर मुझे ढूंढना है whatever the information that I want to search either about any product, place, a person, I will Google it. यानी nowadays we are using Google as a synonym for searching. Okay, so these search engine, generally these are called as a search engine, also utilize this X factor. See, we are talking about X factor. X factor used in the social media, that X factor used in the online shopping. Again, the same X factor is going to be used in our Google search engine. See, when we type something in a Google text box to search it, so Google tries to auto complete that particular sentence and it gives some particular kind of the options for searching. So for some, it will suggest some phrases for search according to the user's typing, राइट। सो जब भी हम कुछ टाइप करते हैं सर्च बार में तो वहां पे खुद से ही वो सर्च बार में एक आधा क्वेश्चन बना के हमें सजेस्ट कर लेता है, एंड दिस सजेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन द एक्स फैक्टर। एंड देन द नेक्स्ट वन इज yes, I think many of us are utilizing this particular technology nowadays. Anyone who will help me to identify what it is? Have you heard this Alexa, Google Assistant, and the middle one is the symbol belongs to? Voice command to the systems. Right, 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 right. Voice command to the system. But are you able to identify the kind of a app name? One is Alexa, second is Right. Google Assistant. Yes, Google Assistant is the last one, and the second one is. I hope someone is using iPhone. I think this is Any? Microsoft Copilot. No, no, no. Yes. Siri. Right, 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 right. The जी middle one is belongs to the Siri. See, all these are the virtual assistants. All these are the virtual assistants. So these virtual assistants help us for getting answers to our general questions, or these assistants help us for setting the reminders or the alarms. Even these assistants help us to call someone, or they help us in navigation system also for getting the correct direction for reaching a particular place. अगर कहीं पे हमें जाना है तो वहाँ जाने के लिए जो बेस्ट वे है वो आपको रास्ता है वो आपको बताने में जो मदद करता है ये है गूगल असिस्टेंट, सीरी एंड अलेक्सा। along with this, these apps can be utilized for listening the musics and the podcasts, है ना, जो हम गाने सुनने के लिए पॉडकास्ट सुनने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑल दीज वर्चुअल असिस्टेंट्स आर अगेन एक्स ड्रिवन, ऑल दीज वर्चुअल असिस्टेंट्स आर अगेन एक्स ड्रिवन, and they help us to manage our time,
and information. That's why these devices are also called as a smart devices. These devices are also called as a smart devices. See, with the help of these devices, we are able to increase our productivity. It means as these are X-driven devices, that's why it enhance the or it increase the productivity of the user. Even we are also getting the help from all these virtual assistants. Now, see, in each kind of the application we are saying ki either in virtual assistant this is X driven, in search engine it utilizes X, then in social media also that kind they are using X powered algorithm, online shopping also we can experience X. Then the question is, what is X? Is there anyone who is able to identify what the X is? Yes, what is X? सो एक्स इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आपने सुना है ये कभी इसके पहले? जी, AI is used generally. X never heard about. yes, yes, yes. Actually, x is like a mathematics. In mathematics, we use x for unknown things, unknown variables. So that's why I put a symbol x over there, ma'am. That is the only reason. Okay. So it was a Okay, question yes. to us to recognize what the x is, and that x is artificial intelligence. Okay. So actually this artificial intelligence has transformed our way of living, the way of working in the office or at home, and there are so many virtual assistants that will help in this kind of the living transformation and the work transformation. As we are using this AI system in our daily lives, हम अपने हर रोज की जिंदगी में आजकल हम एआई यूज कर रहे हैं. Nowadays even Google is giving now the AI assistant in searching. ओके. तो जो जब भी हम सर्च करते हैं तो पहला सर्च आजकल जो आता है इट इज बाय जेमिनी और द एआई असिस्टेंट, एंड देन we are getting the different kinds of the link related to our search keyword. Okay, so that's why as we are using this AI, we have seen so many applications of AI, but our today's discussion topic is related to how we can be safe in this particular AI driven work, because everywhere we are using AI, either in shopping, either in social media, search engines, and in our day-to-day life, we are using AI. So the title of today's discussion is Cyber Safety in the AI-driven world. And the topics that we are going to discuss is about, we'll discuss what the artificial Sir, kindly intelligence share is. previous slide. Kindly share previous slide. Yeah. Yes, sir. Go ahead. Thank you, ma'am. So the outline of this today's discussion is we are discussing three we can say the categories of this particular AI. Three things about the AI. The first one is what is AI, that is introduction to the AI. Then we will discuss what are the risks in using AI, and at last we will discuss how safely that we can use AI in our day-to-day life or in our day-to-day work. Okay, so start with the introduction. So generally when we go to define an artificial intelligence, it is a kind of a mimicry of a human intelligence, or we can say uh, we are trying to simulate the human intelligence. As we all know how our brain works, okay, based on the some neurons, they are processing the data in our brain, and then we are getting some kind of the output from that particular processing.
So the objective behind the AI is we try to create a machine or a system which will mimic the human brain. That is, which will self-learn, then which will gives some reasoning and self-correction capability over there in the system, and which will capable to take the inference on the data or on the inputs that has been given by the ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് user. ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? Abdul sir, kindly mute yourself. MDC മാത്രല്ല, 2 മൈനർ 1 Dr. മൈനർ 2 Abdul. MDC 3 പേപ്പറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് ആ Just a minute, sir. I'll mute കഴിയും you. താല്പര്യവും Please ഒക്കെ wait. ഉണ്ടാവും, കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അത് പ്രകാരം ഇയാൾ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കാം. അതായത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയിട്ട് അതായത് ചോദിക്കാം. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം, ഇപ്പൊ തന്നെ ഉച്ചയായി. എന്നിട്ട് അവര് ഇല്ല കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പോയി ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ ഈ 3 ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇയാളുടെ. കേട്ടോ? അപ്പൊ ഇന്ന് അത് ആരെങ്കിലും ഒരാള് കുറച്ച് ഇതിലൊക്കെ അറിവുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൂട്ടിക്കോ, വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ. Thank you, ma'am. Yes, sir. Please continue. So the objective of this AI is we want to mimic the human intelligence or a human brain. Okay. Why we should learn AI? हमें AI के बारे में क्यों जानना चाहिए? Why we must know about AI? Generally, when we utilize this AI or when we know the AI, this artificial intelligence or the knowledge of AI improves the STEM education. STEM stands for science, technology, engineering, and mathematics. These kind of education can be improved by using or by with the help of this artificial intelligence. Okay. And it also promotes the technology literacy. It means we are able to understand how the different kinds of the technologies work, how we can utilize them in our work or in our day-to-day life, so that we can improve the efficiency of our work. When we use AI, it also increases our the problem solving capability, and along with that it also increases our critical thinking also, because we are getting different perceptions with the help of AI regarding the same topic. And we can foster the creativity and the innovation, because with the help of AI we can uh, develop some AI powered projects. As it increases or improves the STEM education, so we are able to add some creativity in our day-to-day work, like our AI videos. Nowadays we are able to create our artificial intelligence based videos or the audio clips, so we can utilize it in our day-to-day life, and we can also have growing career opportunities in AI. So if we increase the knowledge of the AI, then always it will improve our CV, and the space is open to or the more space is open for working. As this AI is very useful, but we can say this AI is double-edged sword. यानी दोन धारी तलवार ज्याला आपण दुधारी तलवार ज्याला म्हणतो आपण. As we can see the white side or the best side of the AI, yes, again there is a dark side of AI. इसके उपयोग के काफी सारे उपयोग हमें पता है AI के, पर इससे हमारा नुकसान भी है. नुकसान कैसे होता है और कौन कौन से तरीके से नुकसान होता है और क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाती है इस AI बेस्ड एक्टिविटीज़ में, तो वो हम अभी आगे के स्लाइड में या आगे के जो भी डिस्कशन है वहाँ पे देखेंगे. सो आवर नेक्स्ट category is related to the risk of using this particular AI. What kind of a risk is there? So generally we have categorized the risk in three types. One is misinformation and disinformation. The second one is the frauds that can be done with the help of AI.
and the third one is the pornography. There are so many other risks also there, but I have selected the high risk areas only, but there are, other than this, there are so many. Okay, so first is misinformation and disinformation. So generally what the misinformation is incorrect information shared without malicious intent. यानी कि ऐसी जो गलत इंफॉर्मेशन है पर जो शेयर कर रहा है उसे पता नहीं है कि उससे सामने वाले का नुकसान होने वाला है. इट मीन्स द इंटेंट इज गुड बट he or she is sharing the false information. Okay, now while disinformation is intentionally deceptive information is going to be spread to mislead the others. वो क्या किया जाता है कि इंटेंशनली इस प्रकार की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है या स्प्रेड की जाती है पब्लिक में to mislead the others. Is there anyone who will help me to give the examples related to this misinformation and disinformation? Misinformation is जो गलत इंफॉर्मेशन है पर जो शेयर कर रहा है उसे पता नहीं है कि ये गलत इंफॉर्मेशन है. The best example that we have experienced in our pandemic है ना. कोविड में हमें बहुत सारे मैसेजेस आते थे, हर कोई भेजता था कि अगर कोविड से बचना है तो गर्म पानी पीना है, काढ़ा पीना है. देर आर बहुत सारे नुस्खे हमें भेजे जाते थे. सी, ऑल दीज आर द फॉल्स इंफॉर्मेशन बट द इंटेंट ऑफ अ सेंडर वाज नॉट मलिशियस. वो अच्छा ही इंटेंट से आपको भेजते थे. कोई भी आपके रिलेटिव्स आपको मैसेज करेंगे कि भाई अगर आपको कोविड से बचना है तो आपको हमेशा गर्म पानी पीते रहना है, काढ़ा लेना है. पर द इंटेंट इज वेरी क्लियर कि आपको वो बचाना चाहते हैं. द इंटेंट वाज बिहाइंड शेयरिंग दैट फॉल्स इंफॉर्मेशन इज गुड. बट इन दिस इंफॉर्मेशन इसमें क्या होता है कि जो इंटेंशन होता है वो गलत होता है. आप में से कोई बता सकता है गलत कहाँ पे होता है ऐसे? बीच में देखिएगा कुछ वीडियोस आए थे, एडिटेड या फिर अल्टर्ड वीडियोस थे जो कि ओरिजिनल वीडियोस नहीं थे. उसको काट छाट करके कुछ वीडियोस बनाए गए थे ताकि जो सिचुएशन है पब्लिक में दंगल हो. ऐसे प्रकार के कुछ वीडियोस आते हैं इलेक्शन के टाइम में सर. इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, राइट, है ना. तो ये जो होता है, एक एग्जांपल अगर कहेंगे तो नागपुर से है. तो एक वीडियो आया था, इट्स अबाउट आई थिंक नाना पटोले जी और राजीव गांधी जी के, सॉरी जी, गांधी जी के रिलेटेड ही था. तो उससे क्या होता है कि जो पब्लिक होती है वो गुस्सा हो जाती है. कई बार कुछ वीडियोस राइट्स में के पहले भी आए थे, शायद नागपुर में हुआ था या इंडिया भर में जो राइट्स होते हैं उनके पहले भी ये डिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी शेयर्ड इन पब्लिक. पर वहाँ पे जो इंटेंशन होता है वो गलत होता है. कई बार ऐसे आता है कि कल से पेट्रोल महंगा होने वाला है, ऐसी एक फॉल्स फेक न्यूज़ आ जाती है तो लंबी कतारें आपको पेट्रोल पंप पे दिखाई देगी. कई बार आता है कि जो आपके टेरिफ ऑफ द मोबाइल इज गोइंग टू बी इंक्रीज फ्रॉम द नेक्स्ट 10 मंथ्स, 10 डेज. तो आप लोग रिचार्ज करना शुरू कर देते हैं. तो इस प्रकार से डिसइंफॉर्मेशन भी स्प्रेड की जाती है और मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड की जाती है. एंड द AI help us to spread this kind of information on the network or the internet. Why? Because AI don't know either the information present on the internet is correct or not. When AI is able to predict it, when the user gives some review or the comment on that. Otherwise, if the information is there, AI consider it is as a correct information. Here AI is not, still that AI is not, or the Google search engine is not able to discriminate or classify either it is the correct information, either it is a misinformation or disinformation. Even though on the WhatsApp also हमें पता, व्हाट्सएप हमें बताता नहीं है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है. कई सारे ऐसे मैसेज आते हैं जो फेक होते हैं या फिर अल्टर्ड इमेजेस हमारे पास आ जाती है. तो हमें ये एक रिस्क होता है कि वी डोंट नो आइदर द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग विद द हेल्प ऑफ AI इट इज अ करेक्ट इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन. ये एक रिस्क हमारी बढ़ जाती है
एंड दिस इंफॉर्मेशन जो इलेक्शंस में काफ़ी सारा यूज़ किया गया था 19 टू 24 में. Then the second one is about the frauds. See, these are the AI driven frauds. और ये आज के ज़माने में बहुत सारे हैं. अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए, इफ वी चेक द स्टैटिस्टिक्स ऑफ महाराष्ट्र, एंड दैट इज ओनली फॉर अराउंड लास्ट ईयर 24-25, तो 11,000 करोड़ का लॉस है. जो भी फ्रॉड्स हुए हैं, जो डिजिटल अरेस्ट वाले फ्रॉड्स है, ये जहाँ पे जो आपका सेकंड नंबर का डिजिटल अरेस्ट वाला है 11,000 करोड़ का है. और इस साल के यानी जनवरी से मई के बीच में 2025 में इट्स अराउंड इन पूना सिटी ओनली 9 करोड़ का फ्रॉड है. शायद लास्ट ईयर रायगढ़ में एक हुआ था फॉर लेडी. इट वाज अबाउट 12 lakhs. आई कैन शो इट, आई थिंक. हाँ, ये वाला देखिएगा. इज दिस विंडो, ब्राउजर विंडो इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. सो ये जो है, आई थिंक अगर नॉन मराठी लोग हैं तो दे कैन रीड इट. इट इज़ इन अ देवनागरी स्क्रिप्ट और लैटिन स्क्रिप्ट, इंग्लिश में ही है. ओनली द पेपर इज इन मराठी. तो यहाँ पे पुण्यात एआयच्या मदतीने धमकावल्याचा पहिला गुन्हा 20 वर्षीय जी तरुणी आहे त्यांना. अँड यांचा पण बराचसा पैसा तिथे गेलेला होता त्या तरुणींचा. आणि इथे रायगडमध्ये 66 lakhs का हुआ था. जो रायगढ़ का हुआ था डिजिटल अरेस्ट वाला जो क्राइम हुआ था, वो इट इज़ अराउंड 66 lakhs. तो काफ़ी सारे ऐसे दीज आर द रिसेंट न्यूज़. ऐसे तो एक दो हमने बस डेमो के लिए आपको दिखाए हैं, पर ऐसे बहुत सारे हैं विच आर, वी कैन से कि the public is becoming a victim of these kind of the frauds. So we'll try to discuss these frauds: family member arrest scam, digital arrest, AI driven phishing attack, and AI driven sextortion. We'll try to understand what is a family member arrest is scam is there. The modus operandi of this particular scam, किसी को पता है कैसे वर्क होता है ये प्रकार का स्कैम? What is the modus operandi for this particular kind of scam? किसी ने एक्सपीरियंस किया है? Yes. Okay. तो I will try to explain. जनरली यहाँ पे क्या होता है, when we thank you अमोल जी. फैमिली मेंबर अरेस्टेड स्कैम में क्या होता है, जो क्रिमिनल्स हैं वो आपको कॉल करते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू प्रिटेंड एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल. वो ऐसे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वी आर द गवर्नमेंट ऑफिशियल, आइदर फ्रॉम द कस्टम डिपार्टमेंट और फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट और फ्रॉम द ईडी. इस प्रकार के जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होती है, उन वो है ऐसे बता के और बोलते हैं कि आपका जो भी रिलेटिव है. कई बार ऐसे कॉल आए हैं, हमारे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है यहाँ नागपुर का, कि उनके फादर को कॉल जाता है एंड दे आर सेइंग कि आपकी लड़की जो है उसको अरेस्ट किया गया है और ड्रग केस में अरेस्ट किया गया है. आपको अगर छुड़ाना है तो आपको इतने इतने पैसे देने हैं. जैसे ही ऐसे पता चलता है तो वो हम एज अ फैमिली मेंबर डर जाते हैं. और जब हम कोशिश करते हैं कि विल ट्राई टू कांटेक्ट अवर दी कंसर्न पीपल, तो बोलते हैं कि आप फोन मत कट करना और तुरंत ही आपको बताना है. दे शो सम काइंड ऑफ दी ऑडियोज which are very similar to the voice of our relatives. तो इस प्रकार से ये जो स्कैम आते हैं कि आपके फैमिली मेंबर को हमने अरेस्ट किया है, तो इस प्रकार से इसकी मोडस ऑपरेंडी होती है और इसमें हमेशा आपको डराने की कोशिश की जाती है. दे ट्राई टू थ्रेटन यू कि आप अगर ऐसे नहीं करेंगे तो ये ऐसे होगा. तो इस प्रकार से आपको डराने की कोशिश की जाती है और कॉल कट करने के लिए हमेशा मना किया जाता है. एंड इफ यू वांट टू सेव दैट पर्टिकुलर रिलेटिव और अ डॉटर, आपको यहाँ पे ये प्रोसेस करनी है. एंड इन दैट प्रोसेस प्रोसेसिंग चार्जेस के थ्रू आपका जो पहले कम चार्जेस से शुरू होता है और आगे आगे वो बढ़ते जाता है.
पहले वो चेक करते हैं कि आप या हम उनके जाल में फंस रहे हैं कि नहीं, एंड अकॉर्डिंग टू दे एक्ट. Okay. In the second case, they are using the same kind of the modus operandi like in digital arrest. But यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि आपको खुद खुद ही एक स्कैम में फंस गए हैं और आपके अगेंस्ट हमने ये डिजिटल अरेस्ट का वारंट निकाला है. और ये जो पूना वाला केस था वो सेम काइंड ऑफ अ केस इट वाज, कि उनमें बोला था कि आप इस प्रकार के स्कैम में दोषी पाए गए हैं और हमने आपको डिजिटल अरेस्ट किया है ना. यानी आपको ये चीज़ें हमें करनी है, हम आपका इंटरोगेशंस जो है हम आपका ऑनलाइन ही कर लेंगे. ऐसे ही पूना वाला केस में किया था उन्होंने, उस लड़की को होटल में रूम बुक करने के लिए किया था, मजबूर किया था. उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की है, आप लोग न्यूज़ में पढ़ सकते हैं. बट डिजिटल अरेस्ट में जो है विक्टिम हम बनते हैं और ऐसे बताया जाता है कि हमें खुद को ही अरेस्ट किया है. फैमिली मेंबर अरेस्ट में हमारे फैमिली मेंबर अरेस्ट है ऐसे बताया जाता है, और डिजिटल अरेस्ट में हम खुद ही अरेस्ट है ऐसे बताया जाता है. देन द थर्ड वन इज एआई ड्रिवन फिशिंग अटैक. फिशिंग अटैक मीन्स व्हाट, आई थिंक यू मे हैव हर्ड अबाउट कि आप लोगों को जैसे मछली को हम जाल में फंसाते हैं कुछ लालच देके, राइट. उसी प्रकार से क्या होता है कि कई बार हमें कुछ ईमेल्स आते हैं, आपने ये लॉटरी जीती है तो इसका प्राइस आपको ये मिलने वाला है, या फिर आपको इस कंपनी में नौकरी मिली है, या आपका ये वाला प्रोडक्ट कस्टम में फंस गया था, आपको वो पाने के लिए हमें ऐसे लगता है कि काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है. फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ आईफोन, 70,000 का प्रोडक्ट है, सिर्फ 700 रुपये दे के अगर हमें वो मिल रहा है तो हम थोड़ा सा उसमें हम फंस जाते हैं. वी बिकम अ विक्टिम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कैम, और हम वो जैसे बोल रहे हैं वैसे प्रोसेस करते हैं. और एक बार हम उसके अंदर गए, इफ वी बिकम विक्टिम ऑफ दैट, तो हम दलदल के जैसे हैं. वो जो कहेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ अ हिप्नोटिज्म. वो हमें अपने आप, हमारे दिमाग को वो लोग काबू करते हैं अपने बातों से, और कुछ चीज़ें एआई टूल्स यूज़ करके. तो वो जितना हो सके वो अपने मन से हमें चलाते हैं. यानी हम काम तो करते हैं बट द कंट्रोलिंग ऑफ अ विक्टिम इज इन द हैंड ऑफ द स्कैमर्स. इट इज दैट काइंड. तो फिशिंग में भी ऐसे ही होता है, ईमेल थ्रू होता है, आपको एसएमएस आते हैं, कई बार आपको वॉइस कॉल आते हैं आपको कि आपको इतने की लॉटरी लगी है, अगर आप कुछ आगे प्रोसेस करना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्म हम आपको लिंक भेजेंगे. तो जनरली वी शेयर, इट स्टार्ट्स with the sharing of confidential information and up end with the financial loss. यानी शुरू होता है अपनी confidential information, जनरल information शेयर करने से, और एंड कहाँ पे होता है कि वो अपना financial loss पे एंड होता है. So this is the third kind of the attack. And then the AI driven sextortion. Sextortion की केसेस बहुत सारी है, कई लोगों को व्हाट्सएप कॉल आते हैं या वीडियो कॉल आते हैं, एंड आई थिंक देर आर काफ़ी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, काफ़ी सारे नेता लोग हैं, दोज बिकम्स द विक्टिम्स ऑफ दिस काइंड ऑफ द सेक्सटॉर्शन अटैक, जहाँ से एआई बेस्ड, एआई क्रिएटेड वीडियोस के साथ उनके साथ चैटिंग की जाती है, एआई क्रिएटेड ऑडियोज के साथ चैटिंग की जाती है. सी इफ आवर वीडियो और ऑडियो इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, देन दे आर एबल टू प्रोड्यूस अ सिमिलर काइंड ऑफ वॉइस, ऑडियो एंड वीडियो. हमारे जैसी आवाज़ से वो अपने ऑडियो एंड वीडियो बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एबल टू सी दीज वीडियोज ऑन द लेफ्ट साइड, ये चल रहा है वीडियो आपकी तरफ? यस सर. आवाज नहीं आ रही है सर पर. आवाज़ नहीं आ रही है. ठीक है, आई थिंक आई आ हैव रही है दैट सर ऑडियो. आवाज. आ रही है. ऑडियो वीडियो हम आ रही है सर, उतना अलग से कुछ चलाने दिक्कत की नहीं कोशिश है. करते हैं. हाँ सर, अभी आ रही है. तो यहाँ पे अगर वीडियोस में हम लोग देखते हैं तो जो राइट साइड में है, आपको पहचान सकते हैं कौन है? फेमस हॉलीवुड एक्टर है.
टॉम क्रूज। टॉम क्रूज, राइट राइट सर, थैंक यू। है ना? तो लेफ्ट साइड वाला वीडियो है ओरिजिनल, एंड उन्होंने क्या किया है, मॉर्फ किया है उस वीडियो को, इनके चेहरे को सिर्फ टॉम क्रूज के चेहरे से मैच किया है। सी आप अगर आंखें देखेंगे, फेस फीचर देखेंगे तो वो सारे सेम है। और इफ यू लुक एट द लिप सिंकिंग आल्सो, ऑडियो के साथ लिप सिंक भी मैच किया गया है, द सेम दैट हैज बीन डन इन सेकंड वीडियोज। है ना? सेकंड वीडियो में भी सेम किया है। ये वीडियो का सिंकिंग है, ऑडियो इसमें है नहीं। सेम आप थर्ड वीडियो में भी देखेंगे तो देखिएगा, जो फेस है वो सिर्फ फेस रिप्लेस किया गया है अलोंग विद द फेशियल एक्सप्रेशन। है ना? यानी फेस के साथ फेशियल एक्सप्रेशन भी आपके, सी पहले कैसे होता था, मॉर्फिंग होती थी, बट इट वाज इमेज मॉर्फिंग, सिर्फ आपके फोटोग्राफ्स मॉर्फ होते थे। पर आजकल जो एआई बेस्ड मॉर्फिंग हो रही है, उसमें जो चीज़ें यूज़ की जा रही है, उसमें ऑडियो भी मॉर्फ होता है और वीडियो भी मॉर्फ होता है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज अ GAN टेक्नोलॉजी, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। जनरली दिस, ये जो GAN टेक्नोलॉजी है, इट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। एक जनरेटिव होता है और दूसरा होता है क्लासीफायर, या जिसको हम डिस्क्रिमिनेटर बोलते हैं। तो ये काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, एक सेकंड, हाँ, ये इमेजेस देखिएगा आप। फॉर क्रिएटिंग दीज इमेजेस आल्सो दे हैव यूज्ड GAN। are you able to identify either these are the original images or the fake images? क्या हमें लगता है फेक है? जब भी हम इसे देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इट्स रियल इमेज और दी ओरिजिनल इमेज, बट ये ऐसे इंसानों की फोटोज है जो इस धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। एंड दिस पिक्चर, अगर आपको ऐसे फोटोज चाहिए तो द लिंक दैट इज ऑन द स्क्रीन, दिस पर्सन डज नॉट exist.com, इस लिंक पे अगर हम जाते हैं तो दिस इज द लिंक आई ओपन इन द ब्राउजर। इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes. हाँ, तो ये ब्राउजर में लिंक है, आप अगर ओपन करते हैं, जितनी बार रिफ्रेश करेंगे उतनी बार आपको एक नया चेहरा मिलेगा। एंड ये चेहरा AI जनरेटेड है। अगर यहाँ आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, देखिएगा, GAN, राइट, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। यहाँ पे ऑल दीज आर दी इमेजेस ऑफ अ पर्सन हु डज नॉट एग्जिस्ट ऑन अ प्लैनेट। ये ऐसे इंसानों की फोटोज है, ये अपनी दुनिया में है ही नहीं। ये जो फोटोज बनाई जाती है, इट इज a mixture of or the fusion of the features from the faces available on the internet। जो हमने फोटोज अपलोड की है, हम में से ही किसी के फोटो में से अलग अलग फीचर्स लिए जाते हैं, बाल किसी और के, आंखें किसी और की, आईब्रोज किसी और के, ये सारी चीजें अलग अलग जगह से ली जाती है और ये फोटोज क्रिएट की जाती है। एंड it's very difficult for a user to identify either it is a real image or a AI generated image with the help of naked eyes। हम अपनी खुली आंखों से देख के पहचाना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, पर हमें गौर से देखेंगे तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो कि हम we are able to differentiate कि either it is a artificial image or it is a uh, AI generated image। And all these AI generated images, audios, videos are going to use in pornography kind of a crime. So there is a high risk of AI generated pornographic images, and the same kind of the multimedia is going to be utilized in the commencement of a sextortion kind of the cases। तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें यूज़ की जा रही है। I think this is the news of January 21st January 2025, and ये न्यूज़ है, इट 24-year-old held in Delhi for blackmailing student by threatening to leak AI generated fake nude images। तो इसका इमेजेस, ऐसे इस प्रकार की इमेजेस का उपयोग अभी काफ़ी बढ़ गया है ना?
तो अभी तो हमने रिस्क भी देख ली है. वी हैव डिस्कस व्हाट आर द रिस्क ऑफ यूजिंग एआई और एआई टेक्नोलॉजी इन आवर दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड वी कैन से. आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी कैन से द करंट वर्ल्ड इज अ एआई वर्ल्ड. पहले हम बोलते थे कि ये जो 21st सेंचुरी है, तो ये डिजिटल एज की है, पर अभी तो हम एआई सेंचुरी भी इसे बोल सकते हैं. काफ़ी सारी चीज़ें अभी एआई बेस्ड होती जा रही है. As we have discussed the kind of the risk in using the AI, now in the next session or in the next few minutes, we will try to understand the safety, or we can say how safely that we can utilize. देखिए, दुधारी तलवार है, that doesn't mean कि we should not utilize the features of that particular तलवार. स्वॉर्ड का जो फीचर्स है वो हम यूटिलाइज नहीं करें, ऐसे नहीं होता है. हमें क्या सीखना है कि सेफली हैंडलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्वॉर्ड. उसी प्रकार से एआई को हम सेफली यूज कैसे करें, इसके बारे में हम आगे जो भी आधा एक घंटा है उसमें हम डिस्कशन करेंगे. टिल टाइम इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी विल डिस्कस, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड. कोई सवाल है? देखिएगा, हमने दो चीज़ें देखी है. वी हैव डिस्कस व्हाट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, देन वी हैव डिस्कस द काइंड्स ऑफ द रिस्क इन यूजिंग द एआई or in believing blind belief that I can say on the AI based devices. ठीक है. So we'll move towards the next part of our lecture or the discussion. How safely we can use this technology in our day-to-day work and life. Okay. See, the first safety tip is verify the source of the messages or emails before providing personal information or clicking on unknown links, as we have discussed in phishing attack. Okay. And we have discussed about key we receive some kind of the fake SMS, you have own the kind of the award, and if you want to get that particular money, click on the below link and fill that particular information. तो ये जो ऐसी फेक या फिर हम बोल सकते हैं सही भी हो सकता है, बट हमें सोर्स कंफर्म करना है. आइदर द सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर information or the email or the message is genuine, then and then only try to click those link and try to share your personal and confidential information on that particular thing. Otherwise, it is recommended not to click any unknown links or the links that has been received from the unknown sources. Okay. Then the second safety measure that we need to take care is verify the origin of the calls from the unknown numbers. As we have seen in the digital arrest attack, in family arrest attack, कि we received a call from the unknown numbers. Okay. वो हमें डराते हैं, पर हमेशा हमें चेक करना है कि either इट इज़ अ करेक्ट नंबर और नॉट. कई लोगों को ऐसे कॉल आते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहे हैं और आपका इंश्योरेंस बंद होने वाला है, अगर आपको रिन्यू करना है तो आपने काफ़ी पहले इंश्योरेंस करवाया था. ऐसे कॉल्स हमें कई बार आते हैं. या फिर ई केवाईसी के बारे में कॉल्स आते हैं. तो हमेशा हमें इन नंबर पे या कॉल्स पे भरोसा नहीं करना है. ब्रांच में जाके आप लोग कंफर्म कीजिएगा हमेशा. जो भी आपका ई केवाईसी है या फिर आपका जो रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा पर्सनली ध्यान देके ही करना है. विदाउट कंफर्मिंग द ओरिजिन ऑफ द कॉल्स आप ब्लाइंडली उस पे एक्ट मत कीजिएगा. दिस इज द सेकंड सेफ्टी टिप, और वी कैन से द मेजर एज अ यूजर दैट वी कैन टेक. देन द नेक्स्ट वन इज, सी, कई बार ये हमने बोला कि फैमिली अरेस्ट की बात की थी हमने. सो ऑलवेज ट्राई टू इस्टेब्लिश अ सेफ वर्ड. ये जो फैमिली अरेस्ट है, इससे बचने के लिए द बेस्ट सॉल्यूशन इज टू इस्टेब्लिश अ सेफ वर्ड विथ योर लव्ड वंस, स्पेशली चिल्ड्रन, सो दैट दे आर एबल टू असर्टन इट टू यू. मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई रिलेटिव है या चिल्ड्रंस है, आपके जो लव्ड वंस है वो आपसे दूर है, कोई आपको फोन कर रहा है
या आपके बच्चों को भी, कई बार ऐसे होता है बच्चों को भी फोन, कई बार हमने मूवी में भी देखा है कि बच्चों को भी फोन जाता है, या फिर मिलते हैं लोग और बताते हैं कि आपके पापा का, मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है और आपको तुरंत अस्पताल चलना है। ये एक मोडस ऑपरेंडी है किडनैपिंग के लिए। और फैमिली अरेस्ट के लिए एक मोडस ऑपरेंडी है कि आपको फैमिली मेंबर्स को बताया जाता है कि आपके बच्चों को अरेस्ट किया गया है और आप लोग थोड़ा सा इतना पैसा दे दीजिएगा या ये इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, आपको डराने की कोशिश की जाती है। तो ये जो सेफ वर्ड है वो हमें हेल्प करता है कि टू आइडेंटिफाई आइदर दैट इज द करेक्ट और नॉट। कैसे होता है कि हमने, अगर मेरे बच्चों के साथ, मेरे चिल्ड्रंस के साथ हमने एक वर्ड शेयर किया है, जब भी हमें कंफर्म करना है, आवाज़ तो सेम आ सकती है, पर जैसे हम पासवर्ड रखते हैं उसी प्रकार से अगर हम एक वर्ड रखते हैं अपने दोनों के बीच में, सीक्रेट वर्ड जो होता है, तो उस प्रकार का वर्ड रखते हैं, तो जब तक वो वर्ड वो खुद से हम, वी कैन आस्क कि व्हाट इज योर सेफ वर्ड, जब तक वहां से सामने से सेफ वर्ड अगर सही है, जो इवेंट है वो सही है, तो वो सेफ वर्ड बताएगा, अगर इफ ही इज द जेन्युइन लव्ड वन पर्सन और द चिल्ड्रन। अगर नहीं है, सामने से फेक कॉल है, तो उनको सेफ वर्ड पता नहीं होता है। तो दिस विल हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड आवर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम बिकमिंग द विक्टिम ऑफ फैमिली अरेस्ट अटैक। तो ये काफ़ी अच्छा टिप है कि आप लोग सेफ वर्ड हमेशा यूज़ करना चाहिए। Then we must be cautious or wary about the our personal information, also the photos or the images and the other media present in our phone. Why? Because जब भी हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो blindly we gives the permission to that particular app. ब्लाइंडली वी गिव द परमिशन टू दैट पर्टिकुलर ऐप। तो हमें अनदेखा करके ऐप्स को परमिशन नहीं देनी है। वी नीड टू चेक कि अगर सिंपल टेक्स्ट कम्युनिकेशन का ऐप है तो उसको थोड़ा इमेजेस की ज़रूरत है क्या, इमेज एक्सेस की, कैमरा की एक्सेस की ज़रूरत है क्या, मल्टीमीडिया एक्सेस की ज़रूरत है क्या, कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत है क्या। जिन ऐप्स को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे उसको परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। या फिर वी कैन सेट दैट परमिशन टू व्हाइल यूजिंग दैट पर्टिकुलर ऐप ओनली, यानी जब भी हम ऐप ओपन करते हैं तभी उसको परमिशन रहेगी, अगर ऐप क्लोज मोड में है तो उसे वो परमिशन नहीं दी जाएगी। इस प्रकार से हम लोग अपना सेटिंग मोबाइल में कर सकते हैं। एंड ये एक है कि डबल चेक द इंफॉर्मेशन और द एडवाइस प्रोवाइडेड बाय द चैटबॉट्स। आजकल ऐसे हो रहा है, हमेशा वी यूज टू टॉक विथ एनी सिस्टम तो पहले ही चैटबॉट्स आते हैं। आईआरसीटी पे हम बुक करने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, चैटबॉट्स का यूज करते हैं। टिकट बुक कर रहे हैं, चैटबॉट से कर रहे हैं। यानी कस्टमर केयर जो अपने हम बोल सकते हैं कि जो इंसान है, दैट कस्टमर केयर सर्विस बाय द ह्यूमन बीइंग इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द चैटबॉट्स। तो ये जो चैटबॉट्स है इनके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन हमेशा डबल चेक करनी है। कई बार हमें आता है कि आप ये वाला रूट ना ले, इस रूट पे काफ़ी सारे ब्लॉकेज है या रास्ता खराब है, आप ये वाला रूट लेंगे, लंबा है बट आप आराम से जा पाएंगे। तो हमेशा ही ये इंफॉर्मेशन सही रहेगी, ऐसे नहीं होता है। सो ऑलवेज वी नीड टू डबल चेक द इंफॉर्मेशन or the advice that is going to be provided by the chatbots or the AI systems that we are using in our devices. Then the next safety measure is, as already we have discussed, we must have to keep an eye on the permissions and the privacy policies about the app that we have downloaded in our system। है ना, हमारे सिस्टम में जितने भी ऐप हमने डाउनलोड किए हैं उनके प्राइवेसी पॉलिसीज क्या है। आइदर दे आर शेयरिंग आवर इंफॉर्मेशन विथ थर्ड पार्टी और दे आर यूटिलाइजिंग आवर इंफॉर्मेशन फॉर सम काइंड ऑफ रिसर्च। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गिविंग, जनरली एआई को आजकल एआई यूज करते हैं ना हम लोग, चैट जीपीटी हो या माइक्रोसॉफ्ट पायलट हो, गूगल जेमिनी हो, तो वहाँ पे जो हम कीवर्ड सर्च देते हैं उसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। इट मीन्स रादर देन गिविंग अ कीवर्ड वी कैन गिव बिग फ्रेज, है ना, लेंदी फ्रेज दैट वी कैन गिव एज अ प्रॉम्प्ट टू दैट पर्टिकुलर AI machine, and that AI machine is having a capability process that big data and get the result from that particular query। तो वहाँ पे जो पॉलिसीज आती है
सी जनरली हम लोग क्या करते हैं, आजकल बीच में एक आया था, इफ आई शेयर माय फोटोग्राफ, तो वहां से वो एआई इमेज बना के देता था, सारी वाली इमेज आती थी, है ना। मेनी ऑफ अस मे हैव यूटिलाइज इट। उसके बाद जिबिली वाली इमेजेस आती थी, देखिएगा आप लोगों को शायद, हैव यू हर्ड अबाउट दैट जिबिली इमेज? यस, एनीवन? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। जो जिबिली आर्ट होता है, इट हैज द ओरिजिन फ्रॉम आई थिंक जापान। जो जिबिली आर्ट शुरू हुआ था 1985 में, तो वो इट इज अ कन्वर्जन ऑफ अ ह्यूमन इनटू अ सम काइंड ऑफ अ कार्टून, है ना। कार्टून काइंड ऑफ अ फीचर में हम इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट आर्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ जिबिली आर्ट। पर उसी जिबिली को एआई में कन्वर्ट किया, एंड दैट पर्टिकुलर जिबिली इज एबल टू कन्वर्ट अ ह्यूमन बीइंग इमेज इनटू अ जिबिली आर्ट इमेज। बट जब भी हम अपनी इमेजेस शेयर कर रहे हैं, तो ऑलवेज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे लिखा होता है कि वो अपने रिसर्च के लिए या काम के लिए आपकी इमेजेस यूज करते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ अ डेटा कलेक्शन प्रोसेस फॉर दोज, है ना। वो आजकल आप किसी मॉल में जाते हैं तो वो कुछ फॉर्म भरवाते हैं, हमारे नंबर्स, हमारे बर्थ डेट, एनिवर्सरी डेट, छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं, बट वो डेटा हमें कितना नुकसान पहुंचाता है, दैट वी हमें जनरली समझ में नहीं आता है। दैट्स वाई ऑलवेज वी नीड टू थिंक बिफोर गिविंग अवर personal information, before downloading app, before giving the permissions to any app, either it is a contact permission, message permission, या फिर मीडिया परमिशन हम दे रहे हैं। And along with that, we must update our softwares and the applications regularly. Either it is on a Windows system or a PC, or it is on a मोबाइल डिवाइसेस। तो हमेशा हमें क्या करना है, अपडेट रखना है। जनरली जो सिक्योरिटी पैचेस आते हैं, जो बग्स होते हैं, वो रिमूव करके आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी डेवलपर है उनके द्वारा, सो दैट कि आपका जो रिस्क लेवल है वो कम हो। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या करना है कि अपडेट करते रहना है, और वी मस्ट हैव टू कीप चेक द परमिशंस, और वी कैन कीप द आईज ऑन द परमिशंस दैट हैज बीन गिवन टू द apps downloaded on our network. Then the next one is, this is the most important that we can say, use strong and unique password for any kind of a online account. Generally we use password for the authentication purpose. जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है। क्या कोई बता सकता है क्या मुश्किलें हैं स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड रखने में? यस, एनीवन? और यू आर हैप्पी विद द पासवर्ड सिस्टम? इजीली क्रैकेबल होता नहीं है पासवर्ड, वेरी गुड। मतलब होना नहीं चाहिए। हाँ, जी 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 जी, वो ना होने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग लिखना है, पर उसके हम लिमिटेशंस के बारे में, आपको क्या दिक्कतें आती हैं पासवर्ड यूज करते हैं तो? Difficult in remembering. यस, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इज टू रिमेम्बर द पासवर्ड। हमारा बोलना, हमारा कहना क्या है कि द पासवर्ड मस्ट बी डिफिकल्ट टू क्रैक, है ना। तो जितना डिफिकल्ट होता है क्रैक करने के लिए, उतना ही डिफिकल्ट होता है हमें याद रखने के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द पासवर्ड, और ऐसे रेकमेंड किया जाता है कि आप हमेशा रेगुलरली वी मस्ट हैव टू चेंज द पासवर्ड्स टू आवर अकाउंट्स, एंड दैट रेगुलरली इज अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 90 डेज हमें सारे अकाउंट्स को, अकाउंट्स का जो पासवर्ड है वो हमें चेंज करना है, ऐसे रेकमेंड किया जाता है। बैंकिंग सिस्टम में ये शायद मैंडेटरी है, आपको कुछ समय के बाद वो मैंडेटरीली आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलते हैं। पर जो ईमेल्स है वहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता है, बट इट इज़ रेकमेंडेड कि आप लोग चेंज करते जाए। सो व्हेन वी आर सेइंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एटलीस्ट लेंथ ऑफ 16 कैरेक्टर, है ना, उसका लेंथ क्या होना चाहिए? 16 कैरेक्टर। द सेकंड रिकमेंडेशन इज इट मस्ट बी रैंडम, यानी उससे कुछ मीनिंग नहीं निकलना चाहिए, है ना। और आप अगर ये पासवर्ड देखेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इज इट विजिबल? है ना, पासवर्ड यस रैंडम जो दिख रहा है, वाई यू यस सी $8 वाला, तो ये रिमेम्बर करने के लिए, याद रखने के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है। एंड इट मस्ट बी यूनिक, मतलब हमने हमेशा नया वाला ही यूज करना है। रीयूज ऑफ पासवर्ड हमें अवॉइड करना है। एक ही पासवर्ड 10 अकाउंट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, वो गलत है। जैसे कि एक पिन होता है, वही पिन हमने अपने एक एटीएम, दो अकाउंट है, दो एटीएम,
जितने भी एटीएम या कार्ड्स है, जितने डेबिट कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, यूपीआई है, सब पे हम सेम पिन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना याद रखना मुश्किल होता है। बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप हमेशा जो आपके पिन या पासवर्ड्स है वो हमेशा अलग अलग रखे या फिर यूनिक रखे, उसी को कहा जाता है। सो it is recommended to use password managers. There are so many password manager. Again, always use the good password managers to manage your password. यही आसान करने के लिए कुछ ट्रिक्स यूज की जाती है। यहाँ पे हमने एक ट्रिक दी है, if I want to remember a difficult kind of a password. Are you able to read this line? Yes, Yes. sir. Pani Puri in rainy evening on date 5th of October 1999. Yes. So for creating the password, rather than using the random password, use the passphrases. It means we will create the password based on the passphrase. पहले देखिएगा दी दा विंची कोड या पहले कहा जाता था कि एक लाइन दी जाती थी और उससे हमें ट्रेजर हंट में भी होता है, देखिएगा, है ना, हिंट हिंट लाइन होती है टू रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो वो हिंट लाइन या फिर हम लोग बोलते हैं कि पास फ्रेज हमें याद रखना बहुत आसान है। कई बार हम किससे सुनाते हैं कि हमने अपने हम जब यंग थे तो ऐसे किया करते थे, हम बारिश में भी पानी पूरी खाने जाते थे। तो दैट लाइंस कैन बी, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर दोज लाइंस, है ना। पानी पूरी इन रेनी इवनिंग, डेट डेट भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, जो याद रहेगा, साल याद है तो साल रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा देर आर अगेन टू वेज टू क्रिएट द रैंडम पासवर्ड फ्रॉम दिस पास फ्रेज। यहाँ पे हमने क्या किया है, पानी पूरी पहला जो वर्ड है उसको हम स्मॉल से शुरू किए हैं, पूरी का पी कैपिटल, इट मीन्स कैपिटलाइज ऑफ ईच वर्ड हमने किया है ना। जितने वर्ड है उन सबको हमने क्या किया है, वर्ड का पहला कैरेक्टर हमने कैपिटल किया है, राइट। एंड एट द रेट रेनी हैशटैग इवनिंग 99 इंडिकेट्स ईयर, ये हमें क्या है पासवर्ड थोड़ा सा हमने क्रिएट किया है। अगेन इट इज वेरी इजी टू क्रैक। To increase the difficulty level of this password, we can use some replacement to the general words or the characters, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया है, in the second line I have replaced a with the symbol at the rate. This is my rule, है ना। जितनी जगह पे a आपको दिखेगा इस लाइन पे, वहां पे हमने I have replaced it with at the rate symbol, right। जितनी जगह पे आ लिखा है तो वहां पे एक्सप्लेनेटरी साइन हमने लिया है, उद्गारवाचक जो चिन्ह है वो उसे हमने लिया है, आय को उल्टा किया है, राइट। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा G इज गोइंग टू बी रिप्लेस बाय 9 और 9 इज गोइंग टू बी रिप्लेस बाय G, क्योंकि ये जो है ये सिमिलर सिंबल्स है। A इज सिमिलर टू एट द रेट सिंबल, G इज सिमिलर टू 9, तो हमने उसको रिप्लेस किया है। उसी प्रकार से हम O है तो उसको 0 से रिप्लेस कर सकते हैं, 0 है तो उसे O से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दीज रूल्स आर डिपेंड्स ऑन द यूजर, यूजर खुद के रूल्स खुद तैयार कर सकता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पास फ्रेज एंड दिस replacement of the characters or the symbol, we can increase the difficulty level of the password so that it will be very difficult to crack it. Sir, we can say that letters, numbers, and special symbols should be applied. Pardon sir, फिर से पूछिए। Letters, Yes, letters, numbers. numbers and special symbols should be applied Yes sir. while creating password. Yes sir. See, we must have to use, this is also a kind of a recommendation ki when we create a password, it's not only the length matters, the matter is the type of different symbols that we are using while creating a password. यही आप कहना चाहते हैं सर? Yes, yes. यस सर, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ रिकमेंडेशन कि हमारा जो पासवर्ड है उसमें क्या होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए। ये हाँ। चारों चीजें हैं तो उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है, राइट Okay, सर। sir. थैंक यू सर। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रिकमेंडेशन अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ द पासवर्ड, जो 16 कैरेक्टर बोली है, यहाँ पे 16 बोला है, अभी रिकमेंड किया है इस साल। वाई, बिकॉज आजकल कंप्यूटेशन काफ़ी फास्ट होते जा रहा है, जो सिस्टम्स है उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है।
पहले कंप्यूटेशनल स्पीड कम होता था, तो 8 कैरेक्टर रिकमेंडेशन है। अभी भी गूगल के पास जाएंगे तो द मिनिमम रिकमेंडेशन इज ऑफ 8 कैरेक्टर्स, बट अभी कंप्यूटेशन स्पीड इतनी बढ़ रही है कि दैट्स व्हाई नाउअडेज दे आर रिकमेंडिंग द 16 कैरेक्टर मिनिमम पासवर्ड along with the lowercase character, uppercase character, special symbol, and number. So we must have to include all these variety in our Yes. password. And if we want to easily remember these things, passwords, because जितना difficulty level बढ़ाएंगे उतना difficult हमें याद रखने के लिए होता है, तो we can take the help of this passphrase to create the password. And the rule book आप बना सकते हैं कि आपका rules कौन सा है, उसी हिसाब से कोई भी phrase ले लीजिए, उसके हिसाब से आप लोग अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी टू क्रिएट द पासवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ पास फ्रेज एंड डिफिकल्ट टू क्रैक। क्लियर? Okay. Okay, sir. Now the next one is this is a Cognitoy that has been developed by I think IBM. It is an AI enabled artificial toy है, ये खिलौना है। तो हमेशा जब भी हम AI एनेबल्ड टॉयज लेते हैं घर पे या फिर अलेक्सा वर्चुअल असिस्टेंट लेते हैं, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि वो दे आर लिसनिंग टू यू, है ना। बैकग्राउंड में वो हमेशा आपको सुनते रहते हैं, तभी तो उनको पता चलेगा। अगर हमने घर पे गूगल होम है या फिर अलेक्सा है या आईफोन है, ओके सिरी कहा है, कब पता चलेगा उसे? जब तक वो हर जो आपकी बात है वो सुन ना ले। इट मीन्स वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक आइदर इन योर होम, है ना, वो आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, डिवाइस से बात कर रहे हैं, या अपने घर वालों के साथ या दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, that every voice is going to be recorded in your phone and analyzed by the phone. बट ओनली द थिंग इज वो तब तक रिएक्ट नहीं करते जब तक उनको उनका वाला प्रॉम्प्ट कीवर्ड नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल गूगल को अगर मुझे कहना है तो ओके गूगल बोलना होता है। जब तक ओके गूगल नहीं आता है तब तक गूगल डिवाइसेस एक्टिवेट नहीं होते हैं, बट दे आर कंटिन्यूअसली लिसनिंग टू यू। तो हमेशा याद रखिएगा द बेस्ट वे इज, हम जब भी गाड़ी पार्क करते हैं तो क्या करते हैं? तुरंत लॉक करते हैं गाड़ी के पास, गाड़ी के पास ही खड़े हैं बातें करते हुए, तो लॉक करते हैं क्या हम लोग? जी, हम अपनी फोर व्हीलर अगर पार्क कर रहे हैं या फिर हम कहीं पे खड़े हैं गाड़ी के बाहर उतरे हैं, तो क्या तुरंत लॉक करते हैं? नहीं, कभी कैसे? कभी No, sir. No, sir. नहीं करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा दूर जाके लॉक करते हैं। जब हमें पता चल गाड़ी के पास ही खड़े रह के काम करना है तो जनरली हम गाड़ी लॉक नहीं करते, राइट। पर गाड़ी से हम हमारे नजरों से गाड़ी दूर है तो हम लॉक करके ही गाड़ी से दूर जाते हैं। एम आई राइट? Yes, sir. यस है ना। अगर हम गाड़ी के लिए ये सारी चीजें करते हैं तो मोबाइल के लिए भी वही हमें यूज करना है। सी, अगर कोई ऐप या अगर आप मोबाइल अपना नहीं देख रहे हैं तो ट्राई टू डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम द नेटवर्क। इफ मेरा मोबाइल अगर ऑफ है, यानी कि जो आप उसका स्क्रीन ऑफ है, मैंने फोन लॉक किया है, तो मुझे इंटरनेट की जरूरत नहीं है ना। जो भी इमरजेंसी होगी वो डायरेक्टली कॉल पे मुझे आ जाएगी। तो ऑलवेज ट्राई टू कीप द मोबाइल डेटा ऑफ टू योर सिस्टम। वाईफाई का भी सिंबल कई लोगों का ऑन रहता है। वाई? घर पे जाते हैं तो घर का वाईफाई ऑटोमेटिक कनेक्ट करता है, ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस का वाईफाई ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है। बट हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हम वाईफाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड में हो रहा है काफ़ी चीज़ें हमें पता नहीं होती है कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन बिहाइंड आवर आवर आइज। तो ये हमें देखने के लिए हमें क्या करना है कि उसका कनेक्शन ही बंद करना है। कई बार ऐसे भी हुआ है कि जो थर्ड पार्टी एप्स हम लोग डाउनलोड करते हैं, दे आर अगेन मॉनिटरिंग द डेटा इन फ्रंट ऑफ यूर कैमराज। और घर पे हम किस हाल में होते हैं हमें पता होता है ना। तो हम ऐसे रखते हैं, अपना मोबाइल ऐसे ही ऑन रहता है। इसीलिए आजकल देखिएगा कैमराज के आगे भी स्लाइडर आया है, तो वी कैन कीप द कैमरा ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्लाइडर। तो वो स्लाइडर अगर कैमरा है मोबाइल में ठीक है, नहीं तो आप टेप लगा के रखिएगा, या फिर आप लोग अपना मोबाइल डेटा, इट मीन्स आई वांट टू से कि आप डिस्कनेक्ट कीजिएगा इंटरनेट से। मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन आप ऑन रख सकते हैं पर इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कीजिएगा। अगर आपके बाजू में रख रहे हैं, आपको जब ज़रूरत है तब ओपन कीजिएगा, इंटरनेट शुरू कीजिएगा। इट टेक्स हार्डली सम फ्यू क्लिक्स और फ्यू सेकंड्स, है ना। तो ये एक आदत हमें डालनी है इफ़ यू वांट टू बी मोर सिक्योर इन दिस पर्टिकुलर एआई वर्ल्ड। ठीक है।
एंड द सेकंड वन इज ये वाले दो ऐप। ये है पहला वाला जो ऐप है वो है गूगल फैमिली लिंक ऐप है, और दूसरा है फैमिली पेरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन है। ये दोनों ऐप बहुत ज़रूरी है। बाय इंस्टॉलिंग दीज ऐप, आजकल ऐसे हो रहा है बच्चे अगर 6th स्टैंडर्ड से अबव जाते हैं तो दे वांट देयर ओन मोबाइल्स। तो हमें मना करना बहुत मुश्किल जा रहा है पेरेंट्स लोगों को। 8th के बाद तो बहुत मुश्किल है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उनकी ऑनलाइन भी होती है, तो 8वीं के बाद मोबाइल यूज़ करने के लिए मना, उनका अपना खुद का डिवाइस उनको देने की ज़रूरत हम पेरेंट्स को पड़ रही है। तो हमेशा देना तो है, बट वी मस्ट हैव टू मॉनिटर द यूज़ ऑफ द मोबाइल्स बाय द चिल्ड्रंस। तो उसके लिए ये दो ऐप्स है थ्रू विच वी कैन कंट्रोल की व्हाट दे आर वाचिंग। ये जो ऐप्स है ये आपको अलर्ट भी देते हैं अगर वो कुछ उनके साथ कुछ अलग, आइदर आवर चाइल्ड्स आर बुलिंग बाय समवन एल्स, तो भी अलर्ट्स हमारे पास अपने मोबाइल में आ जाते हैं। आइदर दे आर वाचिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज जो उन्होंने नहीं देखने चाहिए, तो भी अलर्ट अपने पास आ जाता है। तो these apps must be utilized by the parents for the sake of our family members, or we can say the safety of our childrens। जो भी कस्टोडियंस है उनको पता नहीं होना चाहिए कि ये ऐप वहाँ पे है, तो उनको अगर बता दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट दीज आर वेरी गुड ऐप्स थ्रू विच वी कैन मॉनिटर द यूज ऑफ द मोबाइल बाय अवर चिल्ड्रंस। ठीक है, तो ये दो ऐप हैं। And always remember कि since AI is frequently built and updated by the IT companies, और कोई भी IT companies यूज़र के बेनिफिट के लिए नहीं करती है। always these companies will prioritize the benefit of their company only। तो हमेशा ये हमें याद रखना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट है कंपनी का हो रहा है या अपना हो रहा है, तो अपना नुकसान ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है तो हमेशा हमें अवॉइड करना चाहिए वो जो एआई टेक्नोलॉजी है यूज़ करने के लिए। जितना ज़रूरी है उतना ही एक एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, और लिमिटेड डिवाइसेस से करना है, यानी कि जो भी स्पेसिफिक डिवाइस से ही करना है, कहीं से भी हम लोग एआई का यूज़ ना कर। यस सर उसमें स्मार्ट एंटी थेफ्ट भी ऐप है ना, स्मार्ट एंटी थेफ्ट अलर्ट? मोबाइल के लिए सर? हाँ, मोबाइल के लिए। हाँ सर जी, उसमें वो फीचर हम एक्टिवेट करके रख सकते हैं, ऐप नहीं है। उस फीचर से हमें पता चलता है कि वो फ़ोन कहाँ पे यूज़ हो रहा है। वो भी कब पता चलेगा सर? जब वो नेटवर्क में आएगा तभी, राइट? तो जब हम एंटी थेफ्ट फीचर एक्टिवेट करते हैं, जब वो नेटवर्क में आएगा तभी पता चलता है, अगर वो नेटवर्क में नहीं आता है तो वो पता नहीं चलता है। अच्छा, हाँ सर, हाँ। तो वहाँ थैंक से यू। फैसिलिटीज क्या है कि वी कैन इरेज रिमोटली आवर कॉन्फिडेंशियल डेटा यस फ्रॉम द यस फोन्स। यस सर, यस सर। यस। सो दिस काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशंस दैट वी कैन इरेज, तो ये कुछ फीचर्स उसने दिए हैं, बट एंटी थेफ्ट वाला नहीं है। अच्छा हाँ, यानी चोरी होने के बाद हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, डाटा इरेज कर सकते हैं, लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अच्छा। वो ऑन करने के बाद वो नेटवर्क में भी होना चाहिए सर, तभी हाँ, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है सर। ओके जी। ओके सर। And whatever the apps that we are going to download in our mobile, always try to verify the app information from this particular website, either it is a safe or not. If it is a malicious, then there may be alert by this particular website. Website is about virus total, on which you can upload your files or the apks। आप जो ऐप डाउनलोड करते हैं एपीकेज एक्सटेंशन होता है, तो वो आप अपलोड करेंगे, वो आपको बता देगा कि इज देयर एनी रिस्क ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऐप और नॉट। हाँ, इतना सब होने के बाद भी अगर हम विक्टिम बनते हैं तो क्या करना है? कई बार ऐसे होता है कि हम सारी सावधानियां बरतते हैं या फिर लेते हैं, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी समझ के बाहर होती है। एंड इफ वी बिकम अ विक्टिम, then where to report it? So there are the two options on your screen. The one is cybercrime.gov.in, and the second helpline number is 1930 for financial fraud. These are the helplines for
ऑल ओवर इंडिया, आप भारत से कहीं से भी आप लोग यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। एंड फॉर महाराष्ट्र पीपल देर इज अगेन वन मोर हेल्पलाइन नंबर। इज देयर एनीवन हु नोज इट? महाराष्ट्र के लिए और एक सर 1800। नहीं सर, वो नहीं है अपने फाइनेंशियल, ये क्राइम के लिए वो नहीं है सर। 1945 वाला है। इट इज़ बाय महाराष्ट्र 1945, साइबर, yes, यस। yes, इट्स sir. 1945 बाय महाराष्ट्र साइबर पुलिस। Okay, sir. ओके। एंड अभी जो ये अक्टूबर मंथ है, जनरली ग्लोबली दिस इज सेलिब्रेटेड एज अ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ। और इसी महीने में धार्मिक मैडम ने ये शायद इंटेंशनली रखा होगा कि अवेयरनेस भी हो द एसटीपी रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी। एंड द थीम ऑफ द दिस ईयर cyber security awareness month is कि we must have to think about the simple ways to protect ourselves, and we must have to take some smaller actions and which will make a big difference in our cyber world safety। तो उसमें 4 चीज़ें बताई हैं। पहला है अपडेट यूर सॉफ्टवेयर, जो हमने पहले डिस्कस किया। चारों हमने डिस्कस किया है, एक दो हमने डिस्कस नहीं किए हैं। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड पासवर्ड मैनेजर। टर्न ऑन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आई थिंक मेनी ऑफ अस आर यूजिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर द जीमेल एंड सम एप्स, है ना। जब भी हम लॉगिन करते हैं तो एक ओटीपी आता है। If I am using more than one authentication technique, then it is called as a multi-factor authentication। तो कई बार हम कहीं पे लॉगिन करते हैं तो गूगल पे भी बोलता है कि आप मोबाइल पे यहाँ पे क्लिक करें। अगर उसको अगर सस्पिशियस लॉगिन ऑफ अकाउंट दिखाई देता है तो अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है। तो जनरली इट इज कॉल्ड एज अ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हमेशा जहाँ कहीं पे भी पॉसिबल है वहाँ पे ये ऑन करके रखना चाहिए। एंड ऑलवेज ट्राई टू रिकॉग्नाइज एंड रिपोर्ट स्कैम। We must be able to recognize the kind of a scam that is going to be happen with us. And even though after taking all kind of the security measures, if we become a victim, we must know where to report that particular scam, as we have already discussed. And regarding this, they have created a poster. I have cropped that poster and put it on a screen. The first is about updation of a software. The second one is strong password. ये हमने पहले ही अपने पावर पॉइंट में लिए थे। Then the third one is turn on multi-factor authentication, है ना। तो एक दिस इंक्रीजेस एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू द अकाउंट। एंड जो रिकॉग्नाइज एंड रिपोर्टिंग ऑफ फिशिंग स्कैम है, फिशिंग में ऐसे नहीं है कि ईमेल से ही है या वेबसाइट फिशिंग है। टेक्स्ट यूज़ किए जा रहे हैं, वॉइस यूज़ किया जा रहा है, या फ़ोन कॉल्स यूज़ किए जा रहे हैं, वीडियो कॉल्स यूज़ किए जा रहे हैं फिशिंग के लिए। सो ऑलवेज वी मस्ट हैव टू वेरीफाई द सेंडर बिफोर reacting to that particular email, text, or calls or video calls। Sir, we can say Uh, also safe use of networks, है ना? Pardon, sir? Safe use of network. Yes, 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 sir. This is for safety of the network use, sir, internet use. Okay, and these are the some references that I referred for preparing this particular presentation. Thank you. Stay safe, stay clean, and stay healthy in this AI-driven world. If you have any question, the session is open for question answer. Yes, sir. May I ask one question now? Yes, please, ma'am. I have heard that in that good morning messages, good afternoon, good night messages, phishing code is hidden in that. How is it true or fake? I want to know that. Yes, ma'am. Yes. Sometimes it is true. I can deny that particular thing. Generally, it's not in the message, it's in the images or the multimedia that is going to be shared on the social media. When I say it's a multimedia, it's not in the text messages, ma'am. Either it is a link or it is a image, video and audio. सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आपका जो ऑडियो वीडियो जो है डाउनलोडिंग जो होता है व्हाट्सएप का या सोशल मीडिया का, वो हमेशा ऑफ रखना है। जब भी कई लोगों का कैसे होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वाईफाई पे ऑन होता है, वाईफाई पे हम चले जाते हैं तो मल्टीमीडिया भी डाउनलोड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसे हमेशा ऑफ रखना है। और
ये जो रूटीन वाले इमेजेस है उनमें कई बार दे यूज सम स्टेगनोग्राफिक टेक्निक टू हाइड सम काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन। कई बार वो लिंक भी उसमें इनबिल्ट की जाती है, तो हमेशा इससे सावधान रहना है। Then how to identify this? A Nowadays, layman, how can identify it is see, for a so? layman, it is always, I already mentioned कि अननोन पर्सन से कुछ भी आता है तो हमें हमेशा सोचना है, डोंट ओपन इट, है ना। Okay, अगर okay. कोई बैंक, आजकल एक व्हाट्सएप पे आ रहा था कि दिस इज फ्रॉम द एसबीआई बैंक, आपको ये वाला केवाईसी के लिए एक ऐप डाउनलोड, ऐप का लिंक आ रहा था या ऐप शेयर किया जा रहा था आप लोगों के साथ, तो आप उसे डाउनलोड कीजिएगा और केवाईसी करवा लीजिएगा। तो हमें हाँ, अननोन से कोई भी आता है मैम तो उसे डाउनलोड नहीं करना है। जितना ज़रूरी है उतना ही हमें डाउनलोड करना है। जी जी जी। एक अभी बीच तक में तो कोई, एमएससीबी का मीन्स पेमेंट का भी एक आ रहा था सर, सही जी बात है। जी जी जी, कोविड में यहाँ नागपुर में हुआ है मैडम। आप यहाँ पे एक भोजनालय है, गायत्री भोजनालय, ओके। उनका भी क्यूआर कोड का हुआ था। अच्छा, बाप रे। तो फेक ऑनलाइन, क्योंकि तब ऑनलाइन चल रहा था तो फेक बना दिया एडवर्टाइजमेंट, सभी लोगों ने पैसे दिए, प्री ऑर्डर जो प्री पेमेंट हम्म। होता है ऑर्डर का, पैसे कहीं और चले गए, ऑर्डर आई ही नहीं। अरे बाप रे। हाँ, तो हमेशा हमें मैं भी विक्टिम बन चुकी हूँ सर, ये जो बीच में गाड़ियों के नंबर प्लेट चेंज करने का हुआ था ना। जी 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 जी, ये हाँ, ये उसमें मैं हमेशा से, ऑलरेडी आई बिकेम विक्टिमाइज्ड बाय दैट एंड आई यस हैव मैम, यस, बीन होप कि आपके पैसे cheated by मिले हो। 1000 rupees. 1000 इज ओके मैम, बट लाखों में चला गया है लोगों का। I have been looted by 1000. यस 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 मैम, तो हमेशा ये जो है, हमेशा आप पर्सनली थोड़ा सा बैंक में हो। अभी किसी ने मैसेज किया है कि आरटीओ के है, एमएससीबी के है, ये नियर बाय ऑफिसेस है, तो वी कैन गो देयर एंड वी कैन वेरीफाई आइदर दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट। कई बार बिजली के भी आते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट की जाएगी अगर आपने जी नीचे की लिंक पे हाँ, क्लिक नहीं किया तो। तो है सही हाँ, बात है। तो डर के मारे हम लोग उसके विक्टिम बनते हैं मैम। तो हमें डरना नहीं है, कटेगी तो कितने देर के लिए कटेगी, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं कटेगी। जस्ट गो एंड विजिट योर नियरेस्ट स्टेशन, जो भी आपका ऑफिस, सोर्स ऑफ कांटेक्ट है। कंसर्न ऑफिस, यस जी यस। जी जी जी। ओके सर, थैंक यू। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, आप अपने जो इमरजेंसी सर्विसेज के कांटेक्ट है आपकी एरिया के, वो आपको पता होने चाहिए, along with the address and the what I can say the contact number, ऑथेंटिकेट कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप वहाँ पे भी जाके अगर कोई कॉन्टैक्ट पे, जैसे अभी आजकल कैसे है कि थर्ड पार्टी को काम दिया जा रहा है एजेंसीज को, उन पे आप भरोसा ना करें। कई बार ऐसे होता है, वो अगर वो एजेंसी छोड़ के, वो काम छोड़ के कहीं और चला जाता है तो वो खुद ही उसमें क्रिमिनल बन जाता है। ये हुआ है अभी एक बैंक के साथ, बैंक ऑफ इंडिया का थर्ड पार्टी था। वो इट्स अराउंड द अमाउंट इज मोर देन 16 करोड़। अहमदाबाद से उन्हें ये गिरफ्तार किया है। यस यस, इज देयर एनी अदर क्वेश्चंस? Sir, actually, I'm Dr. Manoj Pandey from GS College. यस सर, प्लीज। 2 months back, my Telegram account was hacked. Actually, ओके, wrongly, I had touched some link. Someone has sent me the photo. You have your old photos, वगैरह, हाँ हाँ and I want to see that. So, I click. Then later on, my Telegram account was handled by someone other. जी सर, जी सर। Such situation, what we have to do? ये होता क्या है सर, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे क्या होता है, जनरली इस पे इतने नोटिफिकेशन और मैसेजेस आते हैं कि वी नेवर केयरफुली रीड दोज, है ना। ट्राई टू लिमिट योर कम्युनिकेशन ऑन दिस, और जितने ऑथेंटिकेट है उसी लिंक पे हमें शेयर करना है। ये होने के बाद टेलीग्राम या फिर जो भी सोशल मीडिया साइट्स है, उनके अपने हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, थ्रू विच यू कैन क्लोज दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी फ्रॉम योर अकाउंट सर। बट वी नीड टू प्रूव कि यस आई एम द जेन्युइन यूजर ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट एंड द अदर वन इज द फेक वन सर। Okay, sir. Thank you.
Anyone else? Any more questions? Sir, it was a wonderful session, sir. Dr. Thank you, Mani, ma'am. sir. Thank you, ma'am. Ma'am, Thank I you have so one much. question. Yes, Bharat, sir. Yes, sir, what is Please go Mool ahead. account? What is Mool account? Actually, some cyber criminal use the Mool account. I didn't get, sir. What kind of Sir, account it is? sir, whenever any cyber criminal make a digital arrest to any person, they use some fake account to transfer money. Generally, it's not the kind of the account. वो फेक अकाउंट नहीं होता है. जनरली दोज आर द टेम्पररी अकाउंट्स. जो पहले कैसे होता था कि ये जो आधार कार्ड या जो भी अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, अपना अकाउंट निकालने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. एक तो अपना फोटो आइडेंटिटी जमा करनी है, दूसरा एड्रेस प्रूफ जमा करना होता है. तो ये लोग फेक अकाउंट्स ओपन करते थे, और जो लोग जो अनपढ़ है उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यूज़ करके वो फेक अकाउंट्स निकालते थे, या फिर उनको कुछ कमीशन देके उनके अकाउंट्स यूज़ किए जा रहे हैं. सपोज इफ समवन इज यूटिलाइजिंग माय अकाउंट फॉर द ट्रांजैक्शन एंड इफ आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन, ये दोनों प्रकार से है. तो वो अकाउंट के लिए शायद उन्होंने मूल अकाउंट कहा होगा सर. मूल अकाउंट बोला है सर. जी 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 सर. जी ओके, थैंक यू. थैंक यू. जी सर. Anyone else? Sir is having another session with us tomorrow. If you have any query, you can note it down and we will continue tomorrow also. So Arjun sir, यहाँ पे रुकते हैं. जी मैम. जी. Yeah. Thank you. So I extend my sincere thanks to you, sir, for engaging excellent and eye-opening session for all the participants. Thank you so much, sir, for giving your valuable time and engaging a wonderful session. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you all. so much. Have a nice day. Thank you, sir. Have a nice day, you too. So friends, May I leave, ma'am? yes, sir, you can. We